اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی۔ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے گفتگو کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں بے شک ان سے بہت قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ تو خبر تھی، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ ایک وعدہ بھی کیا، اور وہ سورہ مومن میں کیا کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ گفتگو ہماری مرحلہ مرحلہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن قربان جائیں آپ کی ٹائمنگ کے کہ جیسے کہ آپ کو اندازہ تھا بھائی اسی وقت میں بیٹھوں گا، الحمدللہ آپ پہنچ گئے۔ محبتیں آپ کی مل کے صلوات پڑھیں۔ تو بات ہو رہی تھی آداب دعا کی۔ ہمارا دین جو ہے اس میں تمام چیزوں کے لیے احکام اور آداب ہے۔ زیارت کرنے جائیے، زیارت کے لیے آداب، نماز پڑھیں، نماز کے لیے آداب، تلاوت کریں، تلاوت کے لیے آداب، اسی طرح سے دعا کے آداب۔ شرائط وہ نہیں تھی، ضروری نہیں تھا، میں نے عرض کیا پہلی مجلس میں، اب کل گفتگو جو ہماری آگے بڑھی، پہلی چیز تو یہ آداب میں سے ایک چیز یاد رہے، قبلہ رو ہونا افضل ہے۔ دوسری چیز طہارت افضل ہے۔ تاکید کی گئی ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو ہو۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس گناہ پر استغفار کرے۔ گفتگو ہماری یہیں پہنچی تھی کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، دعائیں درمیان میں رک جاتی ہیں، پہنچ نہیں پاتی۔ نماز شب جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز شب میں بھی، جب نماز وتر جو عام طور پہ مرسوم ہے لیکن اصل ہے وتر، تو جب صلاۃ الوتر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پہلا کام یہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم کے بعد ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اچھا 70 مرتبہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 71 مرتبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر مجبوری ہو جائے تو اسے مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کیا کیجئے کہ منیمم 70 پہ جائیے آپ، اس لیے کہ عادات کے اثر ہیں، اور جب کثرت سے کہا جاتا ہے تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ استغفار کے ساتھ ان پر ایک کیفیت مرتب ہوتی ہے، کچھ پر دوسری مرتبہ کے بعد مرتب ہوتی ہے، کچھ پر تیسری مرتبہ کے بعد مرتب ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 70 مرتبہ کہنے کے بعد، کچھ پر 70 کے بعد بھی نہیں ہوتی، کئی دن لگتا ہے۔ آؤ میں یہیں پر ایک چیز اور بیان کرتا چلوں، جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو دعا کے وقت تم گریہ بھی کیا کرو، تو توبہ قبول ہوتی ہے گریے کے ساتھ، استغفار قبول ہوتا ہے گریے کے ساتھ، دعا قبول ہوتی ہے گریے کے ساتھ، تلاوت قبول ہوتی ہے گریے کے ساتھ، نماز قبول ہوتی ہے گریے کے ساتھ۔ اعمال کی روح جسے قرار دیا گیا وہ گریہ ہے۔ گریہ کریں آپ کی دعا، آپ کے اعمال، آپ کے استغفار قبول ہوگی۔ لیکن کئی مرتبہ تو ہم کوشش کرتے ہیں آنسو آ جائیں، آنسو نہیں آتا۔ خدا نخواستہ ہم ایسے شقی القلب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جن سے بہتر پتھر ہے، کہ پتھر سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔
क्यों होता है? एक और हदीस है अजीजान इकरामी, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक मौला फरमाते हैं माँ जफ़त तुम, तुम्हारी आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते इल्ला लिक़स्वतिल क़ुलूब, ये तुम्हारी आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते मगर ये कि तुम्हारा दिल सख्त हो जाता है। आंसू खुश्क होने का पहला सबब ये है दिल का सख्त होना। आगे मौला फरमाते हैं वमा क़स्सतिल क़ुलूब इल्ला लिकसरतिल फ़ुरूज, और तुम्हारे दिल नहीं सख्त होते हैं मगर जब गुनाह की कसरत हो जाती है, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, तो नतीजे में क्या होता है? मौला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं। अच्छा, गुनाह करता है क्या? हमारी शख्सियत तबाह करता है, मुआशरा तबाह करता है, रूह तबाह करता है, आखिरत तबाह करता है। कई मरतबा तो हम ये कहते हैं एक गुनाह से क्या फर्क पड़ता है? आदाब दुआ इस्तिग़फ़ार ज़हन में रहे, आदाब दुआ में इस्तिग़फ़ार कितना है, एक गुनाह से कितना फर्क पड़ता है। एक लंबी सिलसिलेवार अहादीस हैं, वो सारी हदीस नहीं बयान करूंगा, एक हदीस समझ लीजिए काफी हो जाएगी। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो गुनाह जिसका करने वाला गुनाह को छोटा समझे वो सबसे बड़ा गुनाह है। जिस गुनाह का करने वाला गुनाह को छोटा समझे वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो फिर हम करें तो क्या करें? गुनाहों से बचें तो कैसे बचें? मेरे मौला आप ही कोई नुस्खा बता दीजिए। आप करीम है, आप मुश्किल कुशा है, आप हाजरत रवा है, लेकिन मसला ये हमने आपसे दुनिया मांगी, आखिरत नहीं मांगी। आप दुनिया के जिस तरह मालिक हैं उसी तरह आखिरत के मालिक है। मैं इसी अकीदे पे जी रहा हूं, कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले हैं। तो मेरे मौला बताइए कैसे बचूं? वो गुनाह सबसे बड़ा गुनाह जिसका करने वाला उसे छोटा समझे। जब 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 कोई गुनाह हम करने जाएं और ज़हन में तसव्वुर आए कि ये गुनाह छोटा है तो फौरन याद रखना तेरा ख्याल अली के ख्याल से टकरा रहा है। तू जिसे छोटा कह रहा है मेरा मौला उसे बड़ा कह रहा है। तुम्हारे आंसू खुश्क नहीं होते मगर ये कि तुम्हारा दिल सख्त हो, और तुम्हारा दिल सख्त नहीं होता मगर ये कि कसरत गुनाह के नतीजे में। तो इसीलिए इसके ऊपर इस्तिग़फ़ार जरूरी है। अब आइए, एक गुनाह का असर हमारी रूह के ऊपर, हमारी शख्सियत के ऊपर क्या होता है? पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अहादीस से सजी हुई गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला, और हम गुनाहों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह और अपने मौला को राजी कर लेंगे। इसलिए क्योंकि अगर आज इस 8 मुहर्रम को अपने आप को इताअत की मंजिल में पहुंचा दिया तो याद रखो हुसैन के लश्कर में जगह मिलेगी। इसलिए कि जिस मौला से मंसूब आज का दिन है, जिसकी ज़ियारत आप पढ़ेंगे उसकी ज़ियारत में आप यही तो कहते हैं कि सलाम हो उस पर जो खुदा का मुती है, जो रसूल का मुती है, जो इमाम का मुती है। सलाम भेज रहे हो इताअते खुदा और रसूल और इमाम करने वाले को, और खुद हम इताअते खुदा और रसूल नहीं कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, पांचवें इमाम फरमाते हैं इज़ा अज़नबा रजुल, हदीस की किताबों में हदीस तो है लेकिन ये हदीस हम रोजाना जो है ना, जब कुम में जब तक मदरसे हुज्जतिया में थे तो रोज इस हदीस को पढ़ते थे। मदरसे हुज्जतिया में हमारा मतलब मस्जिद में जो दर्स होता था, मुख्तलिफ कमरों में दर्स होता था। एक हुजरा था जहां मदरसे हुज्जतिया के फाउंडर थे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुज्जत, उनकी कब्र जहां थी उसे मकबरा कहते थे। तो उनकी जहां पर कब्र थी वहां पर हमारा दरसे तफसीर कुरान होता था। आयतुल्लाह नूर मोहम्मदी दरसे तफसीर कुरान देते थे। छोटी सी दफ्ती के टुकड़े के ऊपर सफेद कागज चिपकाया हुआ था, उस पर पांचवें इमाम की हदीस लिखी हुई थी। रोज बैठते थे दर्स में, रोजाना जो है ये हदीस सामने होती थी। हदीस क्या थी? मौला फरमाते हैं कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके बाद
फयुहरम सलातल लैल, वो नमाज शब से महरूम हो जाता है। सबसे पहला नतीजा, सबसे पहला असर नमाज शब से महरूम हो जाता है। अब हमारी समझ में आया कि अगर किसी की फज्र छूट रही हो, किसी की जोहर छूट रही हो, अगर वो कई कई दिन नमाज नहीं पढ़ पा रहा हो, रोजा नहीं रख पा रहा हो, मुस्तती होके हज नहीं कर पा रहा हो, तो ये जो गुनाह हो रहे हैं, ये इताअत नहीं हो पा रही, वाजिब नहीं हो पा रहा। तो इमाम ने फरमा दिया, जब गुनाह करते हो तो गुनाह का सबसे पहला असर ये होता है कि तुम्हें इबादत से जो है महरूम कर दिया जाता है। सलावत पढ़ें बाबा। इससे बेहतर और बुलंद सलावत। सुबह सुबह इतनी सख्त गुफ्तगू, लेकिन हाँ अजीजों, क्या है कि तुम्हें महरूम कर दिया जाता है, इबादत से महरूम कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मौला की एक और हदीस है। यह हदीस किसकी थी? पांचवें इमाम की। हदीस अधूरी है, मुकम्मल नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है, मुकम्मल बाद में करूंगा। छठे इमाम की एक और हदीस है। अजीजों, पता ये चला गुनाह का सबसे पहला नतीजा, गुनाह का सबसे पहला नतीजा कि इंसान इबादत से महरूम कर दिया जाता। अब जो उसके बाद छठे इमाम की हदीस सुनिएगा, हम इबादत करते हैं, क्या हुआ का नमाज जमात में आता हूं, दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ता हूं, मजा नहीं आता, दुआओं में लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझ पर कोई कैफियत नहीं तारी होती। शबे कद्र है, बेका या अल्लाह बे मोहम्मदिन बे अलीन कह कह के मजमा रो रहा है और अपने मौला को बुला रहा है, मुझ पर कैफियत नहीं तारी हो रही। क्यों नहीं तारी हो रही मुझ पर कैफियत? मुझे जायका इबादत नहीं मिल रहा, मुझे जायका इताअत नहीं मिल रहा, मुझे इबादत का मजा नहीं मिल रहा। मौला क्यों? मौला फरमाते तलब तो हलावतल इबादा, मैं इबादत की मिठास तलाश कर रहा था, इबादत का जायका तलाश कर रहा था, इबादत का लुत्फ तलाश कर रहा था। इबादत का लुत्फ इबादत में नहीं रखा था, नमाज का लुत्फ नमाज में नहीं रखा था, रोजे का लुत्फ रोजे में नहीं रखा था। मौला फरमाते हैं तलब तो हलावतल इबादा, मैं इबादत का लुत्फ तलाश कर रहा था, फवजदतुहा फी तर्किल मासिया, इबादत का लुत्फ मैंने इबादत में नहीं पाया, गुनाह से दूरी में पाया, तर्के गुनाह में पाया। सलावत पढ़िएगा। आओ आज सलाम करें उस फरमा बरदार हुसैनी को जो खुदा का भी, रसूल का भी और इमाम का भी मुती था, कि हम गुनाहों से बच जाएं। नहीं अजीजों, मौला का क्या लक़ब है? मौला जो है सरकार वफा कहलाते हैं, ताजदार वफा कहलाते हैं ना। हम कहते हैं वफा की अलामत है अब्बा। बेवफा गुनहगार होता है, वफादार इताअत गुजार होता है। आओ वफादार हो जाए, इताअत गुजार हो जाए। अब हदीस मुकम्मल करूं, पांचवें इमाम की हदीस, मदरसे हुज्जतिया का जो हवाला दिया मैंने। मौला फरमाते हैं जब कोई एक आदमी गुनाह करता है ना, तो सबसे पहला जो उसका असर होता है वो नमाज शब से महरूम हो जाता है। और नमाज शब क्या है? अभी 3 दिन पहले मैंने कहा, मरियम से बेटे ने उनकी रूह से गुफ्तगू की बाद वफात, अम्मा जान अगर जिंदगी मिल जाएगी तो क्या करेंगी? 2 चीज़ों की तमन्ना है बेटा, सर्दियों में नमाज शब, गर्मियों में रोज़ा रख। नमाज शब से महरूम हो जाता है। उसके बाद मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं गुनाह का असर किसी भी इंसान की रूह पर उस चाकू से ज़्यादा सख्त होता है जो चाकू गोश्त पे रख के गोश्त काटा जाता है। चाकू को वक्त लगता है गोश्त को टुकड़े करने में, गुनाह को वक्त नहीं लगता तुम्हारी रूह को टुकड़े टुकड़े करने में। गुनाह इतनी तेजी से हमें पामाल करवाता है। तब क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें ना। कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं? 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। कब पढ़ते हैं? नमाज शब में पढ़ते हैं। हर नमाज के बाद आपको जहाँ तस्बीह का हुक्म है, दुआओं का हुक्म है, वहाँ कहा गया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कहें। तमाम अमाल में कहा जा रहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कहें। रोज़े अरफा कहा जाता कहो तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। मैदान अरफात में कहा जा रहा कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। इस्तिग़फ़ार का हमारे औरात के ऊपर बड़ा असर होता है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, मोमिन की क्या शान है भाई। ये एक हदीस बयान करके जहमत आपकी तमाम करो। मौला फरमाते हैं हमारा चाहने वाला गुनाह नहीं करता। अव्वल तो
तो फिर हम हैं कौन? मौला फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला गुनाह नहीं करता। तो मौला अगर आपका चाहने वाला गुनाह नहीं करता तो ये भीड़ जो यहां से वहां तक आ रही है ये है कौन? मौला आप ही हम पर करम कीजिएगा। तो के बाद दुश्मना नजरदारी, दोस्तारा कुजाकुनी महरूम, तो के बाद दुश्मना नजरदारी। आप अपने चाहने वालों को कैसे महरूम करेंगे जो दुश्मनों पे लुत्फ करम की बारिश कर देते हैं? मौला फरमाते हैं, इस हदीस के साथ मैं गुफ्तगू मुकम्मल करने जा रहा हूं, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला ये अशरे की तमाम जहमतें कोशिशें आपकी कबूल हो जाएंगी, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत का भी सबब बनेगी और साथ ही साथ हमारी नस्लों के हिदायत का सबब भी बन जाएगी मजलिस। बाजी तो सुनिएगा, मौला फरमाते हैं मेरा चाहने वाला गुनाह नहीं करता, और अगर गुनाह करता है तो इस्तिग़फ़ार में देर नहीं करता। अगर गुनाह करता है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार में देर नहीं करता। उसके बाद मौला क्या फरमाते हैं, और गुनाह करके तौबा करके राजी कर लेता है खुदा को। अब इस्तिग़फ़ार किया, खुदा राजी हो गया, उसके अकाउंट में अब गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बाद सुनिएगा मौला क्या फरमाते हैं, और जब जब उसे कभी वो गुनाह याद आता है तो उस गुनाह को याद करके इस्तिग़फ़ार करता है, उस गुनाह को याद करके इस्तिग़फ़ार करता है। गुनाह कभी किया था, याद जब भी आता है इस्तिग़फ़ार करता है। हमें तो याद ही नहीं कि हमने कितने गुनाह किए। जब गुनाहों का हिसाब नहीं तो इस्तिग़फ़ार का आगाज कब होगा? जब इस्तिग़फ़ार का आगाज नहीं तो इस्तिग़फ़ार मुकम्मल कब होगा? तौबा कब होगी? वह खत्म की मैंने ज़हमत, आओ सरकारे वफा का वास्ता दें। अभी अभी आपने अज़हर सईद साहब से सुना ना, आपने कलाम सुना नसीमुल हसन ज़ैदी साहब का, शहज़ादी जनाब सैयदा रोज़े क़यामत अपने साथ कुछ सामान शफात लाएंगी, उनमें अब्बास के कटे हुए शाने होंगे और कहेंगी परवरदिगारा मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूँ। अरे मेरे अब्बास के शाने कलम किए गए, अल्लाहु अकबर। हुसैन ने अब्बास को जब रुखसत किया तो अलम पर यह लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। अब्बास चले गए, अब्बास चले गए। जब मशकीज़ा लेके आने लगे, अब्बास का शाना कलम हुआ, दायना शाना कलम, बायां शाना कलम। और उसके बाद अजीजो जब एक मर्तबा हुरमुला ने तीर मशकीज़े पे मारा, अब अब्बास जो खैमे की तरफ नहीं जा रहे, अब अब्बास जो है मुखालिफ सिंध में जा रहे, इसलिए कि अब खैमे में जाके क्या करूंगा? अरे खून बहा तो अब्बास को सदमा नहीं था, लेकिन पानी बहा तो अब्बास को बड़ा सदमा था। आखिरी दो जुमले बस ज़हमत तमाम अजीजों, अब्बास जमीन पर गिरे। अरे जनाबे सैयदा ने जाकिर से यही तो कहा, ए जाकिर, अरे करबला में जो भी जख्मी गिरता था तो अपने हाथों से टेक लेता था। हबीब गिरे हाथों से टेका, हुसैन गिरे तो हाथों से टेका, लेकिन अल्लाह अकबर। अरे जब अब्बास गिरे तो अजीजों शाने कलम हो चुके थे, मुंह के बल जमीन पे कहा गुलाम का सलाम आखिर सअलमुल लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून मातम हुसैन।